हॅलो फ्रेंड्स, हाऊ आर यू? मजेत ना? असायलाच पाहिजे. माय सेल्फ मिस्टर नरेंद्र जंगले. वेलकम स्टुडंट्स. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी SSC Standard 10th Maths Part 2, that means Geometry's 7th chapter, Mensuration. From this 7th chapter we are going to study the sector of circle, in which area of sector and length of arc is there, and the relation between this area of sector and length of arc. So these 3 points we are going to study here. So here these 3 points are there. First point is area of sector, ये पहला पॉइंट हम लोग को स्टडी करना है. सेकेंड पॉइंट दैट इज लेंथ ऑफ आर्क, इसका फॉर्मूला क्या है वो देखना है, length of arc. And third one, this relation between this length of arc and area of sector. Now using these 3 points we have to solve that practice set 7.3. So today we are going these points. First point जो हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं वो एरिया ऑफ सेक्टर. पहले व्हाट इज मीन बाय सेक्टर एंड देन फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ सेक्टर. सेकंड लेंथ ऑफ आर्क, इसका एक फॉर्मूला देखेंगे. उसके बाद रिलेशन बिटवीन द लेंथ ऑफ आर्क एंड द एरिया ऑफ सेक्टर, इसका एक फॉर्मूला है. और यूजिंग दिस 3 formulas we have to solve this practice set 7.3. So that part we are going to study. So let us see first part, that is sector of a circle. If you observe this figure, in this circle O is the center of circle, OP and OQ, these are the radii of the circle. This POQ is the central angle and this PMQ is one of the arc, minor arc. And here if you write N, then PNQ is major arc. Now in this figure what is given, अगर हम लोग को लिखना है माइनर आर्क, सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल कौन सा है, थोड़ा सा रिवीजन लेते हैं हम लोग पहले. सेंट्रल एंगल, विच वन इज द सेंट्रल एंगल? एंगल POQ इज अ सेंट्रल एंगल. माइनर आर्क कौन सा है इसमें, देखो माइनर आर्क, आर्क PMQ, that is the minor arc. Major arc, which one is the major arc in this figure? This PNQ arc, PNQ is called the major arc. Now what is meant by sector of the circle? So when we draw any central angle, so this POQ is the central angle. That central angle divides this circular region into 2 parts. This is first part, ये जो है देखो ये ऐसा, this is the first part. ये जो डॉट में बता रहा हूं अभी ये, so this is dotted part is the first part. ये जो डॉटेड पार्ट है ये फर्स्ट पार्ट है इसका. बिकॉज ऑफ दिस सेंट्रल एंगल POQ, ये देखो समझो एक अपना रोटी है, रोटी का ऐसा एक पार्ट हम लोग कट कर दिया, दैट इज द सेक्टर. तो ये जो पार्ट दिखाया गया है OPMQ इज अ सेक्टर. तो दिस POQ, that means central angle, divides this circular region into 2 parts. Each part is called the sector of circle. So this part is a minor sector, और ये जो part है that is called major sector. Sector of circle is a part enclosed by this 2 radii and the minor arc. We can write the definition. Sector of a circle is a part enclosed by 2 radii and
joining these two radii. So here this OP and OQ through two radii. So we can write the sector as sector O dash, सेंटर लेना है O dash PMQ, ये आर्क लिखना है O dash PMQ इज माइनर सेक्टर, जो माइनर आर्क से कनेक्टेड है माइनर सेक्टर, और सेक्टर O dash PNQ क्योंकि ये रेडिया है दोनों, सो एरिया एनक्लोज बाय द रेडिया है, ये दोनों रेडिया है, एंड द सेक्टर ज्वाइनिंग द एंड पॉइंट ऑफ द टू रेडिया है, ये दोनों को ज्वाइन करने वाला जो सेक्टर, ये मेजर सेक्टर, अगर मेजर आर्क रहेगा तो मेजर सेक्टर, माइनर आर्क ज्वाइन करता है तो माइनर सेक्टर. सो हियर पी एंड क्यू इज अ मेजर सेक्टर. सो इन दिस वे वी कैन राइट major sector and the minor sector. So these are the two sectors. Major sector यानी sector enclosed by the two radii and the minor sector यानी minor sector is joining the two radii, then it is minor sector. Major sector अगर join करता है तो major sector. So in this way in figure this O dash PMQ यानी जो dotted part से मैं दिखाया हूँ that is a minor sector, और ये जो बाकी का पार्ट है रिमेनिंग पार्ट दैट इज कॉल्ड मेजर सेक्टर. नाउ हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस सेक्टर, दैट इज आवर इंपॉर्टेंट पॉइंट. नेक्स्ट फॉर्मूला इज एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. हियर दिस थीटा इज द सेंट्रल एंगल, पाई यू नो. So this is the formula for area of the minor sector और area of sector, and major sector कैसा निकाल सकते हैं हम लोग देखेंगे अभी. So next formula is area of major sector is equal to area ऑफ सर्कल, यानी टोटल सर्कल में से ये पार्ट माइनस करना है. एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर. उसमें से हम लोग अगर माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर देते हैं देन वी गेट दिस एरिया ऑफ दिस मेजर सेक्टर. So in this way these are the two formulas for area of major sector and the minor sector. So remember these formulas, we have to use these formulas while solving that practice set. The next formula is length of arc. So length of arc is equal to theta upon 360 into 2 pi r. So what is the difference in the formula? Length of arc में यहाँ पे 2 pi r है और एरिया में pi r स्क्वायर है. यू नो एरिया ऑफ सर्कल pi r स्क्वायर, तो एरिया रहेगा तो pi r स्क्वायर लिखना है और इजीली आप लोग ध्यान में रख सकते हो. और अगर लेंथ ऑफ आर्क है तो 2 pi r लिखना है. एंड द थर्ड फॉर्मूला इज, सो हियर ये माइनर आर्क हो गया, तो मेजर आर्क कैसा निकाल सकते हैं हम लोग. देखो लेंथ ऑफ मेजर आर्क, मेजर आर्क का अगर लेंथ चाहिए देन सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल माइनस लेंथ ऑफ माइनर आर्क. ये फॉर्मूला हो गया लेंथ ऑफ माइनर आर्क. नाउ द नेक्स्ट फॉर्मूला इज रिलेशन बिटवीन. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेशन बिटवीन. ये दो फॉर्मूलीज हम लोगों ने देखे यहां पे, विच एरिया ऑफ सेक्टर एंड लेंथ ऑफ आर्क. So if we write area of sector A is equal to theta upon 360 into pi r square, ये अगर हम लोग A से दिखाते, length of arc is L is equal to theta by 360 into
2 पाई r, ये दो फॉर्मूला है। तो इसमें क्या रिलेशन है वो अभी हम लोग को स्टडी करना है। सो रिलेशन बिटवीन लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर। सो हियर द फॉर्मूला इज, क्या फॉर्मूला देखो, एरिया ऑफ सेक्टर is equal to length of arc into radius divided by 2. So we get A equals L into R by 2, where A is the area of sector, L is the length of arc, and R is the radius. So using this all formulas we have to solve this practice set 7. Now let us see practice set 7.3. Before studying that practice set 7.3, some solved examples are there. Study that solved example, that helps you to solve that practice set 7.3. Now in practice set 7.3 or in mensuration, all sums are the statement sums. So first read that statement sums and write the given things, यानी data जिसको बोलते हैं हम लोग, यानी given radius of circle is 10 centimeter. You know radius is denoted by which letter? Measure of central angle or measure of arc is denoted by which letter? That is theta. So here radius of circle is 10 centimeter and measure of an arc is 54 degree. Find the area of sector. Pi का वैल्यू हम लोग को यूज करना है 3.14. So in first sum what is given? R is equal to, यानी radius R 10 centimeter, then theta is 54 degree. Then what we have to find? A, यानी area of sector. So area of sector formula लिखो, area of sector is equal to theta by 360 into pi r square. ये फॉर्मूला लिख दिया। फॉर्मूला लिखने के बाद वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, थीटा इज 54 डिग्री डिवाइडेड बाय दिस 360 into this pi is 3.14 into r square means 10 into 10. So यहाँ पे हम लोग 9 से डिवाइड करते हैं पहले, 9 6 जा 54, 9 4 जा 36, यानी 6 upon 40 into 3.14 into ये 100, 10 into 10 100. यहाँ पे वापस हम लोग डिवाइड कर सकते हैं 2 से, तो 2 3 जा 6 और 2 20 जा, ये हो गया। और यहाँ 100 से अगर मल्टीप्लाई किया तो 314, तो 2 से वापस डिवाइड करते यहाँ पे 2 10 जा और यहाँ पे 157, सो multiplied by 157 multiplied by 3 divided by this 10, 3 7 जा 21, 2 carry, 3 5 जा 15 plus 2 17, 1, 3 1 जा 3 plus 1 4, so 471 divided by 10. अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो एक डेसिमल यानी 47.1 एरिया ऑफ सेक्टर है और ये सेंटीमीटर है तो स्क्वायर सेंटीमीटर. So here area of sector A equals 47.1 square centimeter. In this way we get the answer of the question number 1. तो ये फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया. Now question number 2. What is given here? Measure of an arc of a circle is 80 centimeter and its radius is 18 centimeter. Measure of arc 80 degree, not a centimeter. That is the mistake in a textbook. So measure of arc theta is equal to 80 degree, not a centimeter, and radius is 18 centimeter. R is equal to 18 centimeter. तो हम लोग को क्या फाइंड करना है? लेंथ ऑफ आर्क. इसमें यहाँ पे भी फाई का वैल्यू दिया है 3.14, वही यूज करना है. देखो लेंथ ऑफ आर्क का
So length of arc is equal to theta upon 360 into 2 pi r. So 80 डिवाइडेड बाई 360, ये 0 0 पहले ही कैंसिल कर देते हैं. 2 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 into r is 18. So here 6 3s are 18, 6 6s are 36. Again 2 4s are 8, 2 3s are. So we get 4 into 2 into 3.14 into this 3 divided by this 3. तो ये 3 और ये 3 भी कैंसिल हो गया. So we get 4 2s are 8 into 3.14. तो 8 से खाली मल्टीप्लाई करो. 8 4s are 32, 3 8 1s are 8 plus 3 11 1. So 8 3s are 24 plus 1 25 और 2 डेसिमल प्लस. So 25.12 centimeter because it is the length of arc. So length of arc is 25.12 centimeter. So in this way easily we can find area of sector या length of arc. Question number 3. Read the sum carefully and write the given data. Radius of sector of a circle is 3.5 centimeter and length of arc is 2.2 centimeter. Find the area of sector. तो यहाँ पे तीसरा फॉर्मूला यूज करना है. Here what is given? Radius r is 3.5 centimeter. Then length of arc is denoted by L. It is 2.2 centimeter. Then what we have to find? Find the area of sector, that is A. तो तीसरा जो फॉर्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर एंड रिलेशन उसमें का वो यूज करना है अभी हम लोग को. सो हियर वी हैव द फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क मल्टीप्लाइड बाय रेडियस divide by 2. So here A means area of sector, it is denoted by A, L into R by 2. So this is the formula. L is given 2.2, R is given 3.5 divided by this 2 से divide कर देते हैं. 2 1 जा यानी 1.1 into 3.5. तो इसको 11 पकड़ के इसको मल्टीप्लाई कर दो पहले. 11 5 जा 55, ये 5 बाकी रहेगा. 11 3s are 33 plus this 5 38 और 2 डेसिमल प्लस है 3.85 square centimeter. That is the area of sector. So in this way if length of arc is given and radius is given we can find the area. Question number 4 from practice set 7.3. Radius of circle is 10 centimeter. That means r is equal to 10 centimeter. So write the given things. Area of sector is 100 centimeter. Area of sector, that means A is equal to 100 square centimeter. Then find the area of its corresponding major sector. So area of corresponding major sector हम लोग को find करना है. So area of major sector, you know the formula, is equal to area of circle minus area of minor sector. तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लिखो पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज ऑलरेडी गिवन 100. एरिया ऑफ सेक्टर इज गिवन हियर 100. सो पाई आर स्क्वायर पाई का वैल्यू दिया 3.14. सो 3.14 into this 10 into 10 minus this 100. So this becomes 3.14 into 100 minus this 100.
तो 100 से मल्टीप्लाई किया तो 2 डेसिमल प्लेस हम लोग राइट में जाएंगे, 314 माइनस 100, सो वी गेट 214 स्क्वायर सेंटीमीटर, दैट इज द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर. So in this way easily we can solve the sums from this mensuration. अगर फॉर्मूला लिखते तो भी हम लोग को फॉर्मूला लिखा आधा मार्क्स, वैल्यू सब्स्टिट्यूट के आधा मार्क्स. क्वेश्चन नंबर 6, दिस डायग्राम इज गिवन इन द फिगर. रेडियस ऑफ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर, दैट मीन्स r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. रेडियस ऑफ सर्कल दिया है 7 सेंटीमीटर. देन मेजर ऑफ आर्क MBN, मेजर ऑफ आर्क MBN is equal to 60 डिग्री दिया है, दैट मीन्स दिस वन मीन्स थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री. थीटा का वैल्यू है वो, यहाँ पे बुक में 68 लिखा है और रॉन्ग है, 60 डिग्री है. नाउ वी हैव टू फाइंड फर्स्ट वन एरिया ऑफ सर्कल. तो पहला क्या निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल. तो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. तो 7 दिए, पाई का वैल्यू नहीं दिया है, तो 22/7 इंटू 7 ये 7 कैंसिल कर दो. 22 7 154 स्क्वायर सेंटीमीटर, दैट इज एरिया. देन सेकंड एरिया ऑफ माइनर सेक्टर O-MBN, O- थीटा डिवाइडेड बाय 360. एरिया ऑफ O-MBN दैट मीन्स माइनर सेक्टर. माइनर सेक्टर का एरिया हम लोग को फाइंड करना है. तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. नाउ वी हैव ऑलरेडी वैल्यू ऑफ दिस पाई आर स्क्वायर, तो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करो, थोड़ा स्मार्ट वर्क करो, वापिस मत निकालो वैल्यू. सो थीटा इज गिवन 60 डिवाइडेड बाय दिस 360. एक जीरो तो कैंसिल हो गया, और पाई आर स्क्वायर का वैल्यू ऑलरेडी अपने पास है 154. 6 1 6 6 सो वी गेट 154 डिवाइडेड बाय 6. 6 से डिवाइड कर दो, 6 2 12, देन 6 5 30, और 6 2 12 बचेगा 34. 6 5 30 40, तो 6 6 यानी 6 रिकरिंग आएगा. 25.6 दैट इज एरिया मीन्स सेंटीमीटर स्क्वायर. यू कैन कन्वर्ट इट इनटू 2 डेसिमल प्लस 6 रिकरिंग मीन्स 7 और 6 ऐसा भी लिख सकते हैं. यू कैन राइट एनी थिंग मीन्स 6 और 7 कुछ फर्क नहीं पड़ता है. थर्ड वन, ये जो मेजर सेक्टर है वो हम लोग को चाहिए. एरिया ऑफ दिस O-MCN दैट इज मेजर सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर मीन्स एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ दिस O-MBN. अभी दोनों का एरिया अपने पास है 154 माइनस दिस 25.6, तो ये माइनस कर दो उसमें से 25.6. तो 154 यहाँ पे हम लोग करते, देखो ऐसा लिखने का, माइनस 25.6. तो दिस 10 minus 6 4, this 14 minus 6 is 8, 5 minus 3 is 2, 128.4. So this is 128.4 centimeter square. So up to 2 decimal places, ये जो डिफरेंस है 2 डेसिमल प्लस तक आपको अलाउड है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो जो बुक के पीछे या कुछ आंसर दिया रहेगा वो कैलकुलेटर से निकाला जाता है. कैलकुलेटर में क्या होता है, पूरा 8 डेसिमल कंसिडर किया जाता है. वी कंसिडर ओनली 1 और 2 डेसिमल. सो हियर वी गेट द आंसर ऑफ 6. नाउ लेट अस सी 7th क्वेश्चन नंबर 7. थोड़ा सा अलग दिया है. इन फिगर रेडियस ऑफ सर्कल इज 3.14 सेंटीमीटर, सॉरी 3.4. r is equal to 3.4 centimeter. Radius of circle is 3.4 centimeter. Then second thing is given perimeter of sector. Perimeter, what is given? Perimeter of sector P dash ABC. This perimeter is given 12.8 centimeter. Then find
area of P dash ABC. So we have to find area of this sector. ये सेक्टर का एरिया चाहिए मुझे, एरिया ऑफ P dash ABC. तो उसके लिए अपने पास फॉर्मूला है A इज इक्वल टू L इंटू ब्रैकेट R डिवाइडेड बाई 2. मेरे पास R दिया है लेकिन L नहीं है, अलग कुछ दिया है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर. पेरीमीटर ऑफ सेक्टर मतलब क्या, ये रेडियस प्लस ए रेडियस यानी PA प्लस PC प्लस लेंथ ऑफ आर्क ABC इज इक्वल टू दिस वन. सो हियर पेरीमीटर, फर्स्ट पॉइंट देखो, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर P डैश ABC, इसका पेरीमीटर दिया है मतलब क्या कि PA लेंथ PA प्लस लेंथ PC प्लस लेंथ ऑफ आर्क ABC, ये तीनों का सम क्या है, ये 12.8. सो दिस इज गिवन 12.8 पेरीमीटर. पेरीमीटर 12.8, उसका वैल्यू डाला 3.4, इसका वैल्यू है रेडियस प्लस 3.4 प्लस दिस L लेंथ ऑफ आर्क डिनोटेड बाय L. तो लेंथ ऑफ आर्क हम लोग को पहले निकालना है. सो वी गेट 12.8 इज इक्वल टू, ये क्या हो गया 6.8 प्लस L. Therefore length of arc L is equal to 12.8 minus this 6.8. तो 12.8 minus 6.8 is 6. So L is equal to 6. Now use this formula. Therefore A is equal to area of sector, or directly we can write area of sector P dash ABC. Area of sector is equal to length of arc multiplied by R by 2, radius by 2. तो यहाँ पे सब वैल्यू अपने पास है 6, लेंथ ऑफ आर्क इज 6 इंटू रेडियस दिया है 3.4 डिवाइडेड बाय दिस 2 से डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2 3 जा, तो डायरेक्टली वी गेट 3 मल्टीप्लाइड बाय 3.4 मतलब 3 4 जा 12 कैरी 1, 3 3 जा 9 प्लस 1 10. So 10.2 square centimeter, that is the area of sector P dash ABC. So in this way, थोड़ा घुमा फिरा के दिया है. पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इज गिवन. यूजिंग पेरीमीटर ऑफ सेक्टर हम लोग को क्या निकालना है, पहले लेंथ ऑफ आर्क निकालो. लेंथ ऑफ आर्क निकालने के बाद ये फॉर्मूला यूज करो, एरिया ऑफ सेक्टर और लेंथ ऑफ आर्क, बिकॉज रेडियस इज देयर, लेंथ ऑफ आर्क इज देयर. नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 9. यू कैन डू दैट क्वेश्चन नंबर 8. 9 नंबर आप 8 नंबर आप लोग कर सकते हो. इन 8th सम में क्या दिया है कि थीटा लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला आप लोग को पता है. लेंथ ऑफ आर्क RXQ, उसके लिए थीटा 60 और R इज इक्वल टू 7. R is given, theta is given, write the formula and find. Let's see 9th sum from practice set 7.3. In 9th sum this figure is given. Here in this figure area of sector P dash ABC is given. Area of sector P dash ABC which is shown in the figure, it is 154 square centimeter. ये area दिया है. Then radius is given again 14 centimeter, radius भी दिया है. तो हम लोग को क्या चाहिए, फर्स्ट वन एंगल APC, ये जो एंगल है इसका मेजरमेंट हम लोग को चाहिए. एंड देन लेंथ ऑफ आर्क ABC, वो बाद में निकाल लेंगे. सो फर्स्ट फाइंड द एंगल. सो फर्स्ट एरिया ऑफ P डैश ABC, इसका फॉर्मूला क्या है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई R स्क्वायर. दिस एरिया इज गिवन 154 is equal to this theta divided by this 360 multiplied by 22 upon 7 into R square means 14 into 14. So 7 1 जा 7 2 जा 2 1 जा 2 180 जा, और यहाँ पे 154 एक बार लिख लेते हैं हम लोग वापस, इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाइड बाय 22 इंटू 14. तो 2 से डिवाइड करते हैं 90 एंड हियर 7, 90 एंड 7
हियर 45 वापस 2 से डिवाइड करते हैं और 11 2 11 जा 245 जा. सो थीटा इज इक्वल टू दिस 154 एज इट इज. जो नंबर डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 45 और जो न्यूमरेटर में है डिनोमिनेटर में लिखो 11 इंटू 7. सो वी गेट 11 1 जा 11 7 जा sorry here 11 as it is 7 1 जा 7 22 जा this 154 और 11 1 जा 11 2 जा. So theta is equal to 90 degree. In this way we get the value of theta, that is angular measurement, angle APC. Angle APC अगर हम लोग को मिल गया, theta मिल गया, then area of sector is given. A is equal to L into bracket R by 2. ये फॉर्मूला यूज करो. A is given 154 is equal to L into R is 14 by 2. So 2 1 जा 2 7 जा तो 154 is equal to L into 2. Therefore L is equal to, L means length of arc is 154 divided by this 2. So 154 divided by 2 we get 2 7s are 14 and 2 7s are 14. So length of arc is 77 centimeter and theta is 90 degree. So in this ninth sum we get question number 11. 10 is easy sum, so you can do that. Here in 10th sum area of sector find करना है. Radius is 7 centimeter और theta अलग अलग theta दिया है 30 degree 210 degree and so substitute that value and find. Now 11 area of minor sector of a circle is 3.85. Area of minor sector is 3.85 and measure of its central angle theta is 36 degree. Find the radius. तो रेडियस फाइंड करना है. एरिया ऑफ माइनर सेक्टर अभी हम लोगों ने जो फॉर्मूला यूज किया वही. सो हियर A इज इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर. A इज गिवन 3.85 सेंटीमीटर स्क्वायर. देन R मीन्स रेडियस ऑफ सर्कल इज गिवन, सॉरी थीटा इज गिवन हियर. थीटा इज 36 डिग्री. Then find R. So area of sector A is equal to, what is the formula? Theta divided by 360 multiplied by pi r square. तो पाई का वैल्यू देखो कुछ दिया नहीं है तो ये जिसका जिसका वैल्यू सब्सटीट्यूट करो. सो 3.85 दिस इज द फर्स्ट वैल्यू. थीटा इज गिवन 36 डिवाइडेड बाय दिस 360 multiplied by 22 upon 7 into r square. तो 36 1 जा 36 10 जा ये हो गया. R square is equal to this 3.85 multiplied by this 5 7s are 35 divided by this 11. तो 11 से अभी करते हैं. ये 3 is less than 11 therefore 0.11 3s are 33 और 11 5s are 55. 0.35 into this 35. So 0.35 into 35 is we get 12.25. ये 3.5 कर दो, ये 3.5 कर दो तो R स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन. R इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर रूट है 5 और 3 4 यानी 35. 3.5. सो R मीन्स रेडियस इज 3.5 centimeter. So in this way in 11th sum we get the radius. Now let us see question number 12. Here one figure is given. So here PQRS is a rectangle, that means this angle is 90, this angle 90, or X is one of the sector, Y is another sector and Z is the remaining part. So here in this figure PQRS is a rectangle. PQ
इज इक्वल टू, ये पी क्यू दिया है, पी क्यू इज इक्वल टू 14, क्यू आर इज इक्वल टू 21। तो ये अगर 14 है तो ये जो पार्ट है, देखो यहां पे हम लोग इसको पॉइंट लेते हैं, समझो ये ए और ये बी, तो ये क्यू ए, देयरफॉर पी क्यू इक्वल्स क्यू ए, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द सेक्टर विद सेंटर क्यू। ए इज इक्वल टू 14, ये क्यू ए अगर 14 हो गया तो क्यू आर में से 21 में से 14 गया 7, तो ये भी 7 आएगा, एंड देयरफॉर दिस ए आर is equal to QR minus this QAQ, therefore this is 21 minus 14 is equal to 7। यानी रेडियस ऑफ सेक्टर और आर्क, ये सेक्टर है, सेक्टर X इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ सेक्टर Y इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अभी Z कैसा मिलेगा, ये दोनों सेक्टर निकालो और उसमें से रेक्टेंगल में से माइनस करो, वी गेट दिस वन। सो फर्स्ट फाइंड एरिया ऑफ एक्स वाई जेड, हम लोग को फाइंड करना है, एरिया ऑफ एक्स फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर एक्स इज इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, दैट इज द फॉर्मूला फॉर सेक्टर। यहां पे थीटा इज 90 डिग्री, थीटा इज 90 डिवाइडेड बाय दिस 360 इंटू 22/7 इंटू दिस आर स्क्वायर मीन्स 14 इंटू 14। सो 9 1 जा 9 4 जा 7 1 जा 7 2 जा, so again 2 1 जा 2 2 जा and 2 1 जा 2 11 जा, so 11 into this 14 we get area of x। (154 square centimeter) that is the area of x। जो x का एरिया है ये अपना आ गया। अभी y का एरिया हम लोग को, एरिया ऑफ y is theta, again theta is 90 degree by 360 into pi r square, here r is 7, for y sector it is 7, so 90 by 360 multiplied by, ये 0 तो कैंसिल हो गया, 22/7 into 7 into 7, तो 7 7 गया, here 9 1 जा 9, 4 जा 2, 2 जा 2, 11 जा, so 11 7 जा 77 divided by 2 is equal to 77, देखो 11 7 जा 77 divided by this 2, तो here we get 2 3 जा 6, एक बचेगा 17, 2 8 जा 36 और 2 5 जा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया हो गया। देन एरिया ऑफ Z, एरिया ऑफ Z इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया निकालो पहले, L इंटू बी माइनस एरिया ऑफ X माइनस एरिया ऑफ Y, ये दोनों का एरिया उसमें से माइनस कर दो, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंटू L इंटू बी माइनस एक्स का एरिया कितना है 154 और इसका है -38.5। सो L इंटू बी, L एंड बी आर गिवन, पी क्यू दिया है, क्यू आर दिया है, 21 एंड 14, सो 14 21 इंटू 14 माइनस दिस, ये दोनों का एडिशन कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो 154.0 और ये 38.5, ये एडिशन कर दो साइड में, तो ये 192, तो ये माइनस डायरेक्ट हम लोग दोनों का एडिशन करते हैं 192.5। अभी ये मल्टीप्लिकेशन करो, 21 4 जा 84, उसमें से 8 यहाँ पे, 21 1 जा 21 प्लस दिस 8 इज 29, 294 माइनस दिस 192.5,
अभी ये माइनस कर दो, सो वी गेट 294.0 माइनस दिस 192.5, माइनस करो अभी, 10 में से 5 गया 5, 4 में से 3 गया 1, 9 में से 9 0, 101.5 square centimeter. This is the area of Z. So in this way we get the areas of X, Y, Z in this question number 13, last sum from this practice set 7.3. इसमें क्या दिया है देखो, triangle LMN is a equilateral triangle. Equilateral triangle मतलब L is 60 degree, every angle is of 60 degree, M is 60 degree, N is 60 degree. So every angle is 60 degree. So theta is 60 degree. LM, this LM is 14. It is equilateral, that's why it is 14. It is 14. As shown in the figure, 3 sectors are drawn with the vertices as centers and radius 7. तो ये 7 हो गया, देखो इसका रेडियस 7, इसका रेडियस 7, इसका रेडियस 7, इसका रेडियस 7, इसका रेडियस 7. So we get the area, यानी for every sector, that every sector we get the same theta and same length of r. So area of one sector. So for इसका अगर हम लोग कुछ नाम दे देते हैं इसको, ये इसको तो हम लोग को देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ P Q R. So area of sector for each sector, theta is 60 degree. Why? Equilateral triangle. यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग triangle LMN is equilateral triangle. Equilateral triangle में एवरी एंगल 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री हो गया इसका थीटा, एंड R is 7 सेंटीमीटर. तो यू कैन फाइंड द एरिया ऑफ दिस. नाउ वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN. पहले क्या क्या चाहिए देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN, इसका साइड दिया है. व्हाट इज द फॉर्मूला? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर. फॉर्मूलिस थोड़ा याद होना चाहिए इसमें, ये चैप्टर में फॉर्मूलिस इंपॉर्टेंट है. सो √3 का वैल्यू यहाँ पे नहीं दिया है तो ऐसा ही लिखते हैं. √3/4 इंटू 14 इंटू 14. सो हियर 2 2 जा 2 7 जा 2 1 जा 2 7 जा. So 49√3 centimeter square, that is area of triangle LMN. ये पहला आंसर मिल गया. दूसरा क्या चाहिए? एरिया ऑफ एनी वन ऑफ द सेक्टर. तो किसी भी एक सेक्टर का एरिया अगर हम लोग चाहिए, एरिया ऑफ एनी सेक्टर, ये 3 जो सेक्टर दिया है उसमें से कोई भी एक सेक्टर का एरिया हम लोग को निकालना है. θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है. थीटा इज 60 डिग्री, 360 डिग्री, 22/7 इंटू रेडियस इज 7. तो एक 7 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 6 1 जा 6 6 जा. सो वी गेट 2 3 जा एंड 2 11 जा. सो 11 7 जा 77 डिवाइडेड बाई द 3. यहां पे डिवाइड करते हैं, देखो 3 2 जा 6, 17 हो गया, 3 5 जा 15, देन 20,
3 6 18 अगेन 20, 3 6 18, तो इसको अगर कन्वर्ट करते हैं तो 25.67 या 7 कर दिया तो भी चलता है सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका एरिया। 6 है तो 6 रिकरिंग वी गेट 67। नाउ थर्ड पॉइंट क्या दिया है? थर्ड पॉइंट इज टोटल एरिया ऑफ द 3 सेक्टर्स। सो टोटल एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स, तीनों सेक्टर का एरिया सेम है, इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय दिस 25.67। 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 7 21, 3 6 18 प्लस 2 20, 2 बाकी है, 3 5 15 प्लस 2 17, 3 2 6 प्लस 1 7, यानी 77.01 स्क्वायर सेंटीमीटर। और फोर्थ पॉइंट हम लोग को निकालना है, द लास्ट पॉइंट दैट वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसा निकालेंगे अभी? नाउ फोर्थ वन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN यानी इक्विलैटरल ट्राइंगल माइनस टोटल एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स। ये तीनों सेक्टर्स का एरिया जो है माइनस कर दो, इज इक्वल टू क्या आएगा? देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल है 49√3 माइनस इसका एरिया है 77.01। Here 49√3 is the area of that triangle, so substitute the value of √3, 49 into 1.73 we get 84.77। उसमें से 77.01 अगर हम लोग माइनस करते हैं तो 7.76 स्क्वायर सेंटीमीटर, that is the area of this shaded region. So in this way we can find the area of that shaded region. So friends, here this practice set 7.3 from this mensuration is completed. If you have any doubt in chapter mensuration or practice set 7.3, then write in the comment box. I will definitely clear your doubt. And if you like the video, please like and subscribe the channel to get the upcoming videos, new videos, and share these videos to your friends.